begin with our MySQL session. So a small revision. Till now, we have understood what exactly, or let's say how exactly we can create user, how to create user. Why we are creating user again? It's simply because we cannot or we should not give any connections. We should not give any connections to our client directly to our root. We should not, because if by any means, if any corrupt file or if any corrupt file comes in our let's say database, what happens? Root will get affected, and ultimately root get affected means everywhere it will be affected. Which we are doing is something we are taking a precaution where it will get filtered out. If XYZ is a user which got affected with respect to that, let's say corrupted file or unwanted data, what will happen? This will get affected, which we can further remove the connection, we can delete those data, or we can do whatever we want, because root is there to take a backup. Okay. So because of that, we are using a different user for further analysis or further connections to others. Then we have also seen yesterday, yeah, then also we have seen yesterday that using DDL, DDL language and DML language, how to create a table, how to create a table. Not only table, we have created databases also. Okay. So creating a table, creating a database is nothing now. We already know that. With respect to that, we have created a databases also, and with that we have also used tables also. But again, creating a table, we have understood that it's not simply just name that we need to provide, but we also need to provide its structural data schema of that particular table with its data type and its size also, isn't it? That we have learned yesterday. So with respect to that, today, and yes, obviously, we have also seen that how to bring the data or how to import the data. One method was that table data import wizard, table data import method, where you don't have to write any code, where you are not needed to write any of a code or any of a functions over here. It's simply option which is available in our database, where if you right click on it, you will get that option. But again, remember that CSV files are only allowed, or JSON. Again, we are considered with CSV file more further. So we are considering CSV file. And with CSV file, this is one of a method. And the next method is again, which is load data in file. Load file inline. Load inline file or file inline. In this way, we can use this code using a code, line by line code. We write line by line code, and then we use a path which is basically available in our MySQL 8.0 update, update or upload, not data, upload column, upload folder. This folder specifically at initial stage when we were installing our MySQL, we have given a full permission. Granted has given us a full access to this particular folder where we can share data. If that data is available in this folder, we can easily share that data. Using that, we had also seen yesterday how we can import data and how we can work on it data. Okay. Now today we are going to understand some of arithmetic or arithmetic details or arithmetic data. Let's say how to work on those arithmetic functions which are available, what exactly they are used for, what output will we get on the basis, and how to use, how to write that, isn't it? We are going to looking for that today. So again, it's not required create database SQL, and this is not required. Again, we already have Arbor, so use that only. So instead of writing this, we will use Arbor over here. Okay, so I'll just change that. Again, I'll make a comment for here, and I'll use this Arbor, not Arbor, Arbor. Okay, with this. Now, as already I have used, you can see that Arbor name of my database is highlighted. Isn't it? It's highlighted means it's not glowing something, but yes, as in compared to others, it is being bold. So it's being
visible for me to take a differentiate, or let's say differentiate between other columns, or not other columns but other databases in this way. Now first, and again, we have seen that when there is a -2 square value, if you take square of a -2 as a value, what you will get? You will get 4. How it doesn't happen? It's simply that this negative value, I don't want this negative value for further analysis. What I will do, I will choose this value to get square. Square means this negative value minus minus will get plus. And again, we don't write plus value as and how it's a positive value. So only 4 values will be represented over here. So removing square is one of our method, which is squaring that particular value. Other method is taking an absolute value, which means if you have like this value, put it like this, -2, your answer will be 2 in this way. So there's a function which is used over here, absolute, ABS. ABS stands for absolute. So again, in different languages, for example, if you're taking Python as a language, because we are going to learn this, Python as a language, you will see that to print any statement, to print any statement means print hello world. If this is my statement that I want to print, okay, with respect to the code. So what I will write, print hello world with codes. You will get output as soon as I write this code. If I execute this code, I will get hello world. इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा. Okay, now this hello world output, what you have got over here, how it went, because this was the function that you have used and you have given the statement that you want to print. Same यहाँ पे select in MySQL. This select is nothing but the same methodology, the same principle of a print, or let's say this is one of a execution part only. तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रिंट करने का आपको व्यू करने के लिए in MySQL, select is nothing but to give you an output, to give you a result, we use select. Select absolute function or absolute of 22.6 value. Absolute of 26.2 value. इसका आंसर क्या होगा? Again it will be 22.6 only. There would not be any change, because if you think कि भाई 22.6 value 23 हो जाएगा, somehow again round up हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, because absolute value only works when you have negative sign in that, and it only converts that negative into positive, nothing other than that. Okay, so if I click on this and if I run this, see, you will get 22.6 as it is. There would not be any change. But if there is a value which is in a negative way, -35, if you click on this, yes, you'll get its positive value. So converting any value from negative to positive is absolute function which is used. Now, mod over here is a modulus. Modulus means what? You must have understood this percentage as a symbol wise. It represents this. It means that your output would be reminder. Okay. What would be the answer of 2 to the 5? इसका आंसर क्या आएगा? Four. Exactly. 4. 4. Exactly. Because 5 4s are, ये क्वेश्चन है, करेक्ट है, आंसर 4 है. इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा ना. एग्जैक्टली. अब यहाँ पे क्या है, नहीं आंसर सही है 4, बट हमारा जो मॉड्यूलस है फंक्शन, वो मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, इस पे फोकस करता है. आपका सही है कि भाई 5 टाइम्स 4 ये कैंसिल आउट होता है. दिस इज क्वेश्चन. ये क्या है, ये क्वेश्चन है. हमें क्वेश्चन नहीं चाहिए. व्हेन यू यूज दिस मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा क्या करता है, रिमाइंडर पे फोकस करता है, रिमाइंडर. सो आपका आंसर 0 आएगा. इट इज डिविजिबल, दैट्स व्हाई. अगर ये डिविजिबल नहीं होता, जैसे होता है ना, कभी हम चेक करते हैं कि दिया हुआ नंबर क्या ये इवन है या ऑड है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर जो दिया है हम डिवाइड बाय उसे 2 करते हैं. अगर आपका आंसर 0 आता है तो क्या है वो
इवन है। अगर वो 1 नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, उसे ऑड करते हैं। कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि 25 से अगर आप डिवाइड करोगे डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो 1 और यहाँ पे क्या आएगा, समथिंग 2 4 कुछ तो बेगा, तो लास्ट में 1 आएगा, यहाँ पे बचा रहेगा एक वैल्यू, तो लास्ट में तो 1 आया ना, तो एनी हाउ विच इज नॉट, तो ये क्या होगा आपका, रिमाइंडर में 1 आएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इट इज नॉट। 0 आएगा तो ही वो इवन कहलाया जाता है। इस तरह से क्या होता है, डिवाइड करके देखते हो। सो ओवर हियर दिस मॉड्यूलस प्रोवाइड्स यू रिमाइंडर। ओके, इसे हम रिमाइंडर प्रोवाइड करते हैं। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस ये आपका आंसर आ गया, रिमाइंडर। अगेन आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, हम जब भी यूज कर रही है सेलेक्ट एबीएस यानी एब्स करके, जो भी आउटपुट में हमेशा आपको क्या आता है, ABS 22.6 ऐसे ऊपर लिखा होता है, और उसके नीचे फिर उसका आंसर आता है कि हाँ इसका अभी इसका क्या आया था 22.6 ऐसे। तो बेसिकली क्या है कि जो ऊपर का कॉलम का नाम है, ये कॉलम का नाम क्या है दिखाता है आपको, जो आपने सिलेक्ट में यूज किया है, और उसका आंसर यहाँ पे आ जाता है। बट ये कितना अच्छा होता अगर ये एबीएस के जगह, इंस्टेड ऑफ एबीएस अगर ऐसे लिख के आता कि पॉजिटिव वैल्यू, और लेट्स से आपको जो चाहिए कि लेट्स से कन्वर्टेड वैल्यू, या फिर जो भी आपको चाहिए एलियास में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे पकड़ो, ये जो हमारा क्या है आउटपुट मॉडुलस का 20/5 जो है हमारा, ये जो आंसर आया है 0, ये आंसर क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं किसी को बताऊंगा कैसे, किसी को सामने वाले को कैसे बताऊं कि ये रिमाइंडर है। तो ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूं, एलियास, एज अगेन इट इज फॉर एलियास, मैं एक एलियास दे दूंगा। जो ये आउटपुट आएगा सेलेक्ट मोड, और ये जो भी आउटपुट आएगा उसका आउटपुट को क्या करो आप, एलियास यूज करो रिमाइंडर, ऐसे रिमाइंडर, तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ दिस इट विल बी रिमाइंडर। कैसे देखो ये, तो रिमाइंडर 0 मतलब आपको क्या हो गया रीड करते समय, अच्छा मॉडुलस 20/5 है, उसका रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, हाँ नाउ इट्स गुड। तो इस तरह से आप उसे एलियास किसी भी कॉलम के बेसिस में एलियास यूज कर सकते हो। अगेन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है पावर ऑफ 4/3, 4 to the 3, 4 का क्यूब आप करोगे तो 64 जो आंसर आएगा अगर वहां पे अगर मैं एलियास नहीं करूंगा और इसे रन करता हूं, तो आपको आंसर आएगा पावर 4/3 64। लेकिन यही अगर मैं एलियास करके करूंगा तो इट बिकम्स इजी, यस पावर 64। पावर यहाँ पे फंक्शन है, ओके पावर क्या यहाँ पे फंक्शन है, विथ पावर फंक्शन ओवर हियर, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, विथ पावर फंक्शन ओवर हियर इसको आप यूज करोगे, विच नंबर एंड हाउ मच पावर वैल्यू, सो पावर एंड दिस वन अगेन POWB होता है मेरे ख्याल से, आई थिंक हाँ POWB है, पावर और POW शॉर्ट, पावर POW वो भी काम करेगा। स्क्वायर रूट का तो ये ऑलरेडी स्क्वायर रूट का छोटा ही है, SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज नथिंग बट 6 36, यस इसका आंसर है। तो एज एन एलियस स्क्वायर रूट आपने यहाँ पे दे रखा है उसका आंसर। अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 169 आप देखोगे तो अगेन इट विल बी 13, वो आंसर आ जाएगा ना। उसी तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जैसे आपको पता हो कि मैक्सिमम वैल्यू एक फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू एक फंक्शन है, वैसे ही आपके एक्सेल में अगेन मैक्सिमम मिनिमम भी है, बट इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन आल्सो यूज ग्रेटेस्ट, ओके ग्रेटेस्ट करके। तो ग्रेटेस्ट मतलब क्या है, सेलेक्ट ग्रेटेस्ट विद दिस फंक्शन, जो आपने लिस्ट प्रोवाइड किया है, जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड की है हमारे सामने उस लिस्ट के अंदर में सबसे ज्यादा, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू जो कैरी कर रहा है वो कौन सा है। तो आप सबसे देखो तो यहाँ पे 40 आंसर है, इफ क्लिक ऑन दिस यू विल गेट 40 एज एन आउटपुट। अगेन एलियास यहाँ पे लिख सकते हो उसे एज मैक्स वैल्यू, सेलेक्ट कर दीजिए, यस मैक्स वैल्यू आपकी 40 है, और यहाँ पे हम कर देते हैं एलियास, उसे दिया नहीं हमने, अभी दे देते हैं मिनी मिन, हाँ ठीक है मिन वैल्यू, ये भी चलेगा। So least is nothing but again for the least value. क्लियर है? गाइस क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ ट्रंकेट करके भी एक फंक्शन है। अभी आप बोलोगे सर ट्रंकेट तो अपना DDL का उसमें से एक फंक्शन है, तो यहाँ पे कैसे आ गया? ट्रंकेट यहाँ पे अलग मीनिंग है और आपकी DDL लैंग्वेज में अलग मीनिंग है। ट्रंकेट मीन्स जैसे आपने कहा था कि एक टेबल है,
उस टेबल में से मुझे क्या करना है, जैसे अगर यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा है, ओके 1 2 3 है ना, ऐसे कुछ वैल्यू लिख रखे हैं, और ये ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है, ऐसे मुझे क्या करना है कि ये जितने भी अंदर के वैल्यूज है ये मिट जाने चाहिए, ये निकल जाने चाहिए, और सिर्फ उसका स्ट्रक्चर रहना चाहिए। तब मैं ट्रंकेट फंक्शन यूज करूँ या फिर ट्रंकेट कमांड यूज करूंगा। यहाँ पे कमांड नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है, सेलेक्ट ट्रंकेट फंक्शन, और ट्रंकेट के अंदर में क्या दिया है मैंने 51.695852 और उसका 3, ये 3 क्या है, ठीक है, दिस 3 मींस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रंकेट क्या करता है वो जानते हैं, फिर 3 बताता हूं। एंड इन दिस सिनेरियो इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ट्रंकेट मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स you want to show. Okay, over here it means how many number of digits after decimal points you want to show. अब यहाँ पे मैंने 3 दे रखा है, तो आंसर क्या आना चाहिए 51.695. ओके, कितना, मुझे 3 डिजिट्स। अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन ऐसा हो सकता है, अगर मैं इसे रन करता आपको पहले दिखाता हूँ। एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ये 3 मतलब लास्ट के 3 निकालना है या स्टार्टिंग के 3 दिखाने हैं। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो आपको यहाँ पे नीचे है ना, यहाँ पे ये रन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे रन करता हूँ, ये देखो आउटपुट क्या है आपका 51 मतलब क्या है, 0 मतलब क्या है, डिफाइन करता है यहाँ पे कितने दिखाने हैं। ओके, कितने डिलीट करने नहीं, कितने दिखाने हैं। सो अगेन इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट। तो ऐसे केस में क्या है, जब मैं यहाँ पे 3 लिखा हो तो 1 2 3 ये दिखाने हैं और आगे के नहीं दिखाने हैं, और आगे डिलीट करने, मतलब बेसिकली शो इतने ही करने। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो। 0 मीन्स नथिंग, सिर्फ ये। ओके, नाउ आपको ये तो पता होगा ये 51.6 अगर वैल्यू है या फिर 67 ऐसे वैल्यू है, और अगर मैं क्या करता हूँ इसे कि राउंड करता हूँ, राउंड करने से होगा क्या 51.7 और 52, ये चांसेस है। वो डिसाइड कैसे होता है, कितने नंबर ऑफ डेसिमल मुझे दिखाने हैं। अगर मैं राउंड अप करता हूं विथ 1 डेसिमल वैल्यू तो होगा क्या 7 विथ कैरी ऑफ 1, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगा और इसे 7 कर देगा। बट इफ आई से आई वांट टू राउंड राउंड अप मतलब क्या, राउंड अप टू हाउ मच इंटीजर, और राउंड मतलब हाउ मच डेसिमल पॉइंट्स, राउंड अप मतलब हाउ मच नियर टू डेसिमल पॉइंट्स। एंड 51 जो राउंड है मतलब 51 को डायरेक्टली मुझे राउंड करना है 52 में, 50.6 को। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे राउंड की वैल्यू है यहाँ पे, तो बेसिकली होगा क्या, देखो अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कुछ, लेट मी एड दिस वन। राउंड 51.69582 जो नंबर है, मुझे क्या करना है, कॉमा 3 डिजिट्स में राउंड करना है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये जो हमारा वैल्यू है कितने हैं, 3 डिजिट्स में हुआ है ना। यू कैन सी दैट 1 2 3, ये जो 3 डिजिट है इतने डिजिट में हुआ है। आगे के कितने हैं 852 है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि लास्ट वाला कौन सा है, ये है आपका 8। इसका मीनिंग क्या है, ये जब कट होगा तो क्या, एक हैंड ऊपर है, देख पॉइंट करके यहाँ पे ऐड कर देगा, इसके से क्या होगा यहाँ पे 51.696, इस तरह से ये आंसर आपका आ गया। अगेन यही केस में थोड़ा चेंज करता हूं, इंस्टेड ऑफ 51.6955452 इस तरह से देता हूं। ओके और मैं क्या करता हूं, अगेन 3 लिखा है, बस वैल्यू चेंज किया है। अब यहाँ पे देखोगे आंसर आपका आएगा 51.695 एज इट इज। क्यों, क्योंकि राउंड अप तभी होता है डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर 5 या 5 से अबव, 5 या 5 से अबव वैल्यू दिख रही है या फिर है तो। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे भी 5 से अबव, यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से अबव है या 5 से इक्वल है, यहाँ पे क्या है लेकिन छोटा है, और हमने क्या बताया आई वॉन्ट टू कीप दिस 3 ना। सो यहाँ पे कंपेरिजन नहीं होगा, कंपेरिजन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से आगे।